Hello students, after studying the topic Raoult's law for solutions containing volatile solute and for solutions containing non-volatile solute, now the topic under discussion will be ideal solutions and non-ideal solutions. First, I will take the topic of ideal solutions. What are ideal solutions? What characteristic features do they show? All this is to be covered in this topic. So, let us start discussing ideal solutions. Any solution which obeys Raoult's law at all concentrations and temperatures, that solution is called as a ideal solution. I repeat, that solution which obeys Raoult's law at all concentrations and temperatures, that solution is called as an ideal solution. So first, let us study at the board. तो सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पे फोकस कीजिएगा. आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, लेकिन मैं अपने इस लेक्चर में अभी आइडियल सॉल्यूशंस ले रहा हूं. यहां फोकस करें सभी स्टूडेंट. दीज आर द सॉल्यूशंस which obey Raoult's law at all concentrations and temperatures. तो स्टूडेंट्स, अगर कोई सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, द सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन. तो फिर यहां फोकस करें. So for these solutions, since Raoult's law is being obeyed, so Ps, vapor pressure of the solution, will be equal to sum total of partial pressure of solvent and partial pressure of solute. Also, according to Raoult's law, Pa will be equal to P naught A into XA, mole fraction of the solvent, and Pb, partial pressure of the solute in the solution, that is equal to P naught B into Xb, that is mole fraction of the solute. तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा मेरी तरफ. अब क्योंकि इन सॉल्यूशंस में क्या स्पेशल पॉइंट हमने आपको बताया कि दीज आर दी सॉल्यूशंस जो ओबे कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ को ऑल कंसंट्रेशंस पे और ऑल टेम्परेचर्स पे. दैट्स व्हाई दीज सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशंस. दीज सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशंस. नाउ लेट अस टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हेन वी गो टू प्रिपेयर एन आइडियल सॉल्यूशन, वी विल टेक solvent in one container and solute in other container. In solvent, we find solvent interactions. जो solvent जिस कंटेनर में हमने लिया होगा, वहां every two solvent particles के in between there will be intermolecular forces whom I am calling solvent interactions. Similarly, जिस कंटेनर में हमने सॉल्यूट लिया है, वहां पे हमें सॉल्यूट पार्टिकल्स के अमंग मिलेंगी solute interactions.
when I take some solute and put it in the solvent to make an ideal solution, new type of interactions are developed in the solution, and these new type of interactions are solvent solute interactions. अब solution में हमें 3 types की interactions मिलेगी. In the solutions we will find solvent interactions, solute interactions, and solution में जो new interactions develop होंगी they will be solvent solute interactions. ये जो solvent solute interactions हैं यही डिसाइड करेंगे कि solution आइडियल होगा या solution नॉन आइडियल होगा. These interactions which are developed among the particles of solvent and solute, which are called solvent solute interactions, if these interactions are of equal order to the solvent and solute interactions. स्टूडेंट्स मैं अपना सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं. जब हम आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे सोल्यूशन में सॉल्वेंट सॉल्यूट न्यू इंटरेक्शंस डेवलप होंगी. अगर ये जो सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस हैं इनका मैग्नीट्यूड, इनका स्ट्रेंथ अगर एग्जैक्टली उतना ही है जितना मैग्नीट्यूड, जितना स्ट्रेंथ सॉल्वेंट इंटरेक्शंस का है, सॉल्यूट इंटरेक्शंस का है, अगर उतना ही मैग्नीट्यूड सॉल्यूट इंटरेक्शंस का है तो जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा दैट विल बी एन आइडियल सोल्यूशन. सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट? सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया गया, सोल्यूशन बनाया गया, और जब सोल्यूशन बना तो हमने फाइंड आउट क्या किया कि जितना स्ट्रेंथ सॉल्वेंट इंटरेक्शंस का था, जितना स्ट्रेंथ सॉल्यूट इंटरेक्शंस का था, ऑलमोस्ट उतना ही स्ट्रेंथ सॉल्यूट इंटरेक्शंस का भी अगर होगा तो जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा दैट विल बी द आइडियल सोल्यूशन. फिर यहां खुद स्टूडेंट्स आप अगले पॉइंट पे फोकस कीजिए, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि ये जो न्यू फोर्सेस डेवलप हो रही हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स के अमंग, इनकी स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आई है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सॉल्यूशन जो होगा उसके वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगी. अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर होती तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्लोजर आ जाते और इससे सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता. अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस वीक होती देन व्हाट कुड हैव हैपन? सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस वीकर होने की वजह से सॉल्वेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स कुड हैव गॉन अवे फ्रॉम ईच अदर. इससे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता. लेकिन इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस व्हाट हैपेंस? देयर इज नो चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फाउंड अमंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉल्वेंट सॉल्यूट पार्टिकल के अमंग जो हैं, जब उनकी स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा. इसलिए बोर्ड पे देखिएगा स्टूडेंट्स हमने क्या लिखा है. पहला पॉइंट, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग सॉल्वेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स आर इक्वल टू दोज of solvent particles and solute particles. As a result, यहाँ फोकस कीजिए, there is no change in the volume of the solution on mixing solute with the solvent. Therefore, delta V,
डेल्टा मीन्स चेंज, डेल्टा वी मीन्स चेंज इन वॉल्यूम। मिक्सिंग लिखा है स्टूडेंट बॉटम पे, इसका मीनिंग क्या है बेस पे, देयर इज नो चेंज in the volume of the solution when solute is mixed with the solvent. तो डेल्टा V इक्वल टू 0, इट सिंपली मीन्स दैट कोई चेंज नहीं आया है सॉल्यूशन के वॉल्यूम में। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करेंगे आइडियल सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए। तो मेन पॉइंट फोर्सेस की स्ट्रेंथ का है, क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस सेम ऑर्डर की हैं। जैसी इंट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स के अमंग मिलती हैं, इससे सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। सो डेल्टा V का वैल्यू हमें 0 मिल रहा है। इट सिंपली मीन्स दैट देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वन मोर पॉइंट, व्हेन देयर इज no change in the strength of the forces, it means that energy will neither be absorbed nor be evolved. स्टूडेंट याद रखिएगा, जब कोई आइडियल सॉल्यूशन बनता है एट दैट टाइम हीट एनर्जी इज नीदर इवॉल्व्ड नॉर एब्जॉर्ब्ड। क्यों? क्योंकि जो न्यू फोर्सेस डेवलप हुई हैं उनकी स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आया है। अगर ये न्यू फोर्सेस सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस अगर वीक होती तो क्या होता? फोर्सेस वीक होने का मतलब वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती और डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता। हम इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अगर ये फोर्सेस सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस अगर स्ट्रॉन्गर होती तो वहां पे कुछ एनर्जी रिलीज होती, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता और डेल्टा एच का वैल्यू हम नेगेटिव लेते। नेगेटिव डेल्टा एच मींस चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी। इंथैल्पी इज हीट कंटेंट। तो क्या यहां पे है? बाइनरी सोल्यूशन है, सॉरी बाइनरी सॉल्यूशंस तो है स्टूडेंट, आइडियल सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट सॉल्यूट की इंट्रैक्शंस इक्वल स्ट्रेंथ की है। इससे जब हम सॉल्वेंट सॉल्यूट को मिक्स करके आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि फोर्सेस की स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आया है, इससे ऐसे सॉल्यूशन को जब हम बनाएंगे तो एट दैट टाइम heat energy neither it will be absorbed nor it will be evolved. इसका मीनिंग there will be no change in the enthalpy. तो स्टूडेंट स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे फोकस कीजिए, there is no change in the enthalpy value on mixing solute with the solvent. So delta H change in enthalpy of the solution on mixing solute with the solvent will also be 0. That is, no heat is absorbed or evolved. तो फिर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना है, कुछ पॉइंट्स को मैं रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ बिफोर टेकिंग सम एग्जाम्पल्स। वी हैव अ सॉल्यूशन, इफ दैट सॉल्यूशन obeys Raoult's law at all concentrations and at all temperatures, it will be an ideal solution. Point number 2, for an ideal solution, the strength of the intermolecular forces among solvent solute particle is of same order as found in solvent particles and solute particles. For an ideal solution, there will be no change in volume and therefore delta V is equal to 0. For an ideal solution, there is no change in the enthalpy of the solution. No heat is absorbed, no heat is evolved. Therefore, the value of delta H is also 0. There is no change in the value of enthalpy. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने स्टडी क्या किया? When we talk about ideal, इसका मीनिंग क्या था एक्चुअली? हमने सॉल्यूशन बनाया, हमने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिक्स किया और ऑल कंडीशंस आइडियल रहे। कुछ ऐसा अज्यूम कीजिए कि हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स किया
और हमें ऐसा अपीयर हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कंडीशंस बिल्कुल आइडियल रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमें ऐसे लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं? हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। नॉर्मली सॉल्यूशन के वॉल्यूम में चेंज आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन के वॉल्यूम में चेंज नहीं आई। यहाँ पे सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस जो डेवलप होंगी उनके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, सॉल्यूशन की इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए जब इस टाइप का सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा होता है तो हमें अपरेटस में ऐसा लगता है जैसे मानो कोई चेंज नहीं आ रही है, जैसे हमें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, हमें लग ही नहीं रहा है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रही है, कोई इंथैल्पी की वैल्यू में चेंज नहीं आ रही है। These kind of solutions are called as ideal solutions and now very important, सभी याद रखिएगा, practically there is no solution which can be strictly called as an ideal solution। स्टूडेंट मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट सेंस में अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जिसको आइडियल सॉल्यूशन कहा जा सके। जिनको हम आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं वो ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो राउल्स लॉ को टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट ओबे करते हैं एट वेरी वेरी डाइल्यूट कंसंट्रेशंस। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, देयर इज नो सॉल्यूशन, प्रैक्टिकली देयर इज नो सॉल्यूशन विच कैन बी कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। फिर जिनको हम आइडियल सॉल्यूशंस कह रहे हैं वो क्या हैं? वो सॉल्यूशंस हैं जो राउल्स लॉ को टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट ओबे करते हैं, बट एब्सोल्यूट सेंस में कोई भी सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। वन मोर पॉइंट, हमें जब आइडियल सॉल्यूशन बनाना हो तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो हम आपस में मिक्स करेंगे वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट ऑलमोस्ट सेम पोलैरिटी के होने चाहिए, उनका मॉलिक्यूलर साइज और उनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। अगर आई रिपीट माई सेंटेंस, इफ solute and solvent are of same polarity, are of same structure and are of almost same molecular size, only these kind of solute and solvent on mixing can produce binary solutions. So now let's take some common examples of binary solutions. Mixture of benzene and toluene, mixture of normal heptane and normal hexane, mixture of ethyl bromide and ethyl iodide, mixture of chlorobenzene and bromobenzene, and many more examples are there. But before closing the topic of ideal solution, याद रखिएगा प्रैक्टिकली कोई ऐसा सलूशन नहीं है जो आइडियल हो। 100% कोई सलूशन राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता। जिन सलूशंस को आप आइडियल कह रहे हैं, नंबर 1 वो बहुत डाइल्यूट सलूशंस हैं और राउल्स लॉ टू अ लार्जर लेवल ओबे करते हैं। सो आफ्टर दैट वी विल स्टडी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में ले रहा हूँ। थैंक यू।